یہ بتائیں کہ سبزیوں میں سب سے کم وٹامن کون سا ہوتا ہے؟ نہیں جی، سبزیوں میں سب سے کم وٹامن ہوتا ہے ای۔ آدم ثانی کن پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ غلطی ہو گئی میرے بھائی، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ بتائیں کہ ایمسٹرڈم کس ملک کی بندرگاہ ہے؟ جرمنی۔ ہالینڈ۔ یہ غلطی اور ہو گئی۔ اور پاک فوج کی کس ریجمنٹ نے سب سے زیادہ نشان حیدر حاصل کیے ہیں؟ پنجاب ریجمنٹ۔ لو جی، یہ تو تکا لگ گیا ان کا۔ یہ بتائیں کہ حکیم علیم الدین نے لاہور شہر میں کون سی مشہور مسجد تعمیر کروائی تھی؟ نہیں معلوم۔ مسجد وزیر خان۔ کہ قائد اعظم کن دو لیڈروں کے اسرار پر مسلم لیگ میں شامل ہوئے؟ علامہ اقبال اور محمد علی جوہر۔ اچھا، علامہ اقبال نہیں تھے جی۔ دو لیڈروں کے نام، ایک کا تو آپ نے بتا دیا، دوسرے کا میں بتا دیتا ہوں۔ سید وزیر حسن، تشریف لے آئے آپ۔ بر صغیر میں کس خاندان کے دور حکومت میں فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا؟ مغلیہ دور میں سر۔ جواب درست ہے، تشریف لے آئے۔ برطانیہ کے کس شہر کو لٹل پاکستان کہا جاتا ہے؟ بریڈفورڈ۔ جواب درست ہے جی۔ کہ مدار ارضی یا آربٹ کسے کہتے ہیں؟ کہکشان۔ چیلنج۔ جی سر، آربٹ ایک سرکل ہوتا ہے، اور دوسرا آربٹ کے میننگز یہ بھی ہیں کہ کوئی چیز جو سینٹر کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ جی، وہ راستہ جس پر زمین سورج کے گرد چاروں طرف گھومتی ہے اسے مدار ارضی یا آربٹ بھی کہتے ہیں۔ جواب درست ہے جی۔ پاکستان کی سب سے بلند چوٹی K2، اس کو پہلی بار کب سر کیا گیا؟ 1954۔ 1954۔ 31 جولائی 1954 کو پاکستان کی سب سے بلند چوٹی K2 پہلی بار اس کو سر کیا گیا۔ اسکندریہ کا لائٹ ہاؤس جو 7 عجائبات میں سے ایک تھا کیسے تباہ ہوا؟ چیلنج۔ سر، یہ حملہ ہوا تھا تو اس میں مطلب انہوں نے اس کو نہیں جی، یہ زلزلے سے تباہ ہوا تھا جی۔ قائد اعظم پر پہلی کتاب کس نے لکھی؟ مسز سروجنی نائیڈو۔ سروجنی نائیڈو۔ قائد اعظم پر پہلی کتاب دا ایمبیسڈر آف یونٹی، یہ لکھنے والی تھی مسز سروجنی نائیڈو۔ جواب درست ہے جی۔ پنجابی زبان کے لیے مختلف وقتوں میں مختلف نام مثلا ہندوی، ہندی، ہندوئی استعمال ہوئے۔ اس کے لیے پنجابی کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ سوری سر۔ چیلنج۔ ابو الفضل۔ یہ تھے حافظ برخوردار، انہوں نے پہلی بار لفظ پنجابی استعمال کیا تھا، اس کے بعد پھر یہی لفظ رائج ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ کس سن میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی؟ 1933۔ چیلنج۔ 1940۔ 1930۔ پنجا صاحب کا نام پنجا صاحب کیوں ہے؟ اس میں 5 ہاتھ کے 5 انگوٹھے اس میں رکھے ہوئے ہیں پتھر پر۔ اچھا جی، جواب آپ کا غلط ہے۔ بابا گرو نانک جی کا ہاتھ کا پنجہ لگا ہوا ہے، یہ سکھ مت اس کو مقدس جانتے ہیں۔ اس واحد سائنسدان کا نام بتائیں جس نے کوئی تجربہ کیے بغیر نوبیل انعام حاصل کیا۔ چیلنج۔
नहीं जी, ये आइंस्टाइन ने कोई तजुर्बा किए बगैर नोबेल इनाम हासिल किया था जी। इसका शेर है, तुम्ही से है मुजाहिदो जहान में सबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मौलाना जफर अली खान। चैलेंज सॉरी सर। नहीं, ये थे जी अब्दुल मजीद सालिक। आखिर तुर्की की करेंसी को क्या कहते हैं? तुर्की की करेंसी को क्या कहते हैं? ये अहमद आफ्ताब लासानी का इनाम जीत गए हैं और अब ये फाइनल खेलेंगे जी। पाकिस्तान ने किस तारीख को भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए एटमी तजुर्बा किया? 28 मई 1998। आ जाएं। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की जानिब से क्रिकेट टेस्ट मैच खेल चुका हो। अब्दुल हफीज कारदार। अब्दुल हफीज कारदार, जवाब दुरुस्त है जी। शहद कितने साल पुराना होने के बाद खराब होना शुरू हो जाता है? सर, इसकी कुरान पाक में अल्लाह पाक ने मुद्दत हजारों साल बताई है कि ये खराब होता ही नहीं है। हजार साल गुजरने के बाद भी शहद कभी खराब नहीं होता। शर्त यह है कि शहद हो, गुड़ घोला हुआ ना हो। जवाब दुरुस्त है। इमरान खान साहब को भी उस इलेक्शन में हराया था, वो पहला इलेक्शन था गालिबन इमरान खान साहब जी, उनका पहला इलेक्शन था। सर, आपको इसी के अंदर नजर आता है इस किस्म का कोई एक जो ऑनेस्टी का एक, आप जैसे कहें कि आपको लगे कि हाँ ये इससे कुछ उम्मीद मुझे हो सकती है शायद? एक बंदे से। वो कौन सर? जिसको मैंने शिकस्त दी थी, इमरान खान। मोंटगमरी पाकिस्तान के किस शहर का पुराना नाम है? अलिफ फैसलाबाद, बे साहिवाल, जीम सियालकोट या दाल शेखुपुरा? फैसलाबाद का पुराना नाम था लालपुर, सियालकोट सियालकोट ही था, शेखुपुरा शेखू वो उसका शहजादे का हिरन था, ये उसकी याद में शेखू का जहांगीर का हिरन था। साहिवाल है जिसको मोंटगमरी कहते थे। बे साहिवाल को सेव किया जाए। मोंटगमरी इसका पुराना नाम था और जब 61 या 62 में मैं खुद उस फंक्शन में गया था जब इसका नाम तब्दील हो रहा था। लाहौर में वाक़े बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? 25 लाख रुपए का यह सवाल है। अलिफ औरंगजेब आलमगीर, बे नूरुद्दीन जहांगीर, जी जहीरुद्दीन बाबर या दाल नसीरुद्दीन हुमायूं? शहर लाहौर तेरी रौनके दायम आवाज़, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको, और जहां मुझे खींच के लाई वहां आलमगीर को भी खींच के लाई थी। उसको आलमगीरी मस्जिद भी कहते हैं और वो औरंगजेब है। औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर, कोई शक नहीं है तारिक अजीज साहब को, एक लम्हे के लिए भी कोई शक नहीं किया। अलिफ औरंगजेब आलमगीर को सेव किया जाए। 25,000 रुपए घरों की तरफ। उर्दू का मशहूर नज़्म उमराओ जान अदा किसकी तस्नीफ है? अलिफ कुरतुल ऐन हैदर, बे मिर्जा हादी रुस्वा, जीम अब्दुल्ला हुसैन या दाल मुंशी प्रेमचंद? कुरतुल ऐन हैदर ने तो आग लिखी थी जी, और मेरे भी सनम खान ने। ये दोनों नॉवेल इतने मोटे मोटे बिल्कुल सही पढ़ रखे हैं। अब्दुल्ला हुसैन मेरे दोस्त भी थे, पिछले दिनों 3-4 महीने हुए इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने उदास नस्लें लिखी थी। सही। मुंशी प्रेमचंद का तो कफन जहां से जदीद अफसाना शुरू हुआ है जी, अब रह गया मिर्जा हादी रुस्वा। ये मिर्जा हादी रुस्वा की लिखी हुई नॉवेल है जिस पर हिंदुस्तान में भी फिल्में बनी है, पाकिस्तान में भी फिल्में बनी है। मिर्जा हादी रुस्वा, बे सेफ जा। पाकिस्तान के बाद पहला वज़ीर खजाना किसे मुकर्रर किया गया था? अलिफ मलिक गुलाम मोहम्मद, बे चंद्रीगढ़, जीम सरदार अब्दुल रब निश्तर या दाल जोगिंदर नाथ मंडल?
जोगिंदर नाथ मंडल तो हिंदू था, उसके बाद ये यहाँ से चला गया था, कायदे आज़म की वफात बाद ये चला गया और हिंदुस्तान चला गया था। सरदार अब्दुल रब नश्तर मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर बन गए थे। आई चुंदीगढ़ भी नहीं थे। ले दे के मलिक गुलाम मोहम्मद पर बात आती है। क्या मैं ठीक? अब सेव करते हैं, अलिफ मलिक गुलाम मोहम्मद को सेव किया जाए। ठीक है। सिंधी अदब का चौसर किस शायर को कहा जाता है? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। जवाब दुरुस्त है। का तोहफा। सवाल यह है, किस दरख्त को खवातीन के लांबे कद से तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किस दरख्त को? सरू, सर्व। बीट ऑफ गामा स्टेडियम पाकिस्तान के किस शहर में है? मीरपुर खास। गामा स्टेडियम। खलीफ का तोहफा। मशहूर फिलोसोफर कांट किस यूरोपीय मुल्क से ताल्लुक रखता था? फ्रांस, जर्मनी। जवाब दुरुस्त है। बीट अप है। पाकिस्तान में कितने फीसद अफराद को सेहत की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं? 40%। आपने फरमाया 40%, ये तकरीबन 44 है। बहरहाल आप करीब तरीन हैं। तशरीफ लाएं। आपसे सवाल यह है कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का आज मुबारक दिन है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस्म मुबारक और उनकी कुन्नियत क्या है? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ताला का ताला की कुन्नियत अबू मोहम्मद और उनका इस्म मुबारक अब्दुल कादिर है। उनका नामे नामी अब्दुल कादिर और उनकी जो कुन्नियत है अबू मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शायरी की वो कौन सी सिन्फ है जिसमें शायर महबूब की संगदिली पर उसे जली कटी सुनाता है? इस सिन्फ को क्या कहते हैं? वो सिन्फ क्या कहलाती है? अलिफ मरसिया, बे कसीदा, जीम मसनवी, या दाल गसाख्त। मरसिया तो मरसिया ही होता है, कसीदा उसका उलट है। बिल्कुल सही। मसनवी वो दयाराम की और वो सारा मौलाना जलालुद्दीन रूमी की भी लिखी हुई है मसनवी। ये सवाल तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। वासोख्त है मेरा जवाब जी। वासोख्त। वासोख्त। वासोख्त को सेव किया जाए। 21 जनवरी 1940 को कायदे आज़म ने किस हिंदू रहनुमा के खत के जवाब में लिखा था, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारा जाए उसकी खुशबू बाकी रहती है? नेहरू जवाब। महात्मा गांधी जी के खत के जवाब में उन्होंने लिखा था। नवंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तासीसी इजलास किस रहनुमा के मकान में मुनअक़िद हुआ था? अलिफ डॉक्टर मुबश्शिर हसन, बे मेराज वहद खान, जीम मौलाना कौसर नियाज़ी, या दाल हनीफ रामे। ये मौलाना कौसर नियाज़ी का आपने नाम दिया है, अब तो ये इस दुनिया में नहीं है। हनीफ रामे का तो शायद उस वक्त घर भी नहीं था, किराए के मकान में रहता था। ये भी नहीं। मिराज मोहम्मद खान तो यहाँ कराची में थे जी, और उनका घर भी बड़ा गरीबाना और हमेशा उनकी जिंदगी ऐसी रह गई। बात डॉक्टर मुबश्शिर हसन, तो डॉक्टर मुबश्शिर हसन को सेव किया जाए। एंड इट शुड बी राइट आंसर। पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने मिसरे हैं? 15। जवाब दुरुस्त है। ये बताइए कि मस्जिद आयशा किस मस्जिद का दूसरा नाम है? मस्जिद तनईम। जी जनाब, ये वो मस्जिद है जिसको मस्जिद उमरा भी कहते हैं, मस्जिद तनईम भी कहते हैं, मस्जिद आयशा भी कहते हैं। मक्का पाक में अगर कोई शख्स और अब उमरा करना चाहे तो एहराम बांधने के लिए उमूमन हुदूद हरम से बाहर इस मस्जिद में जाया जाता है। अल्लाह हम सबको वहाँ जाकर एहराम पहनना भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुंबई में बोलचाल की भाषा में किस प्रकार के व्यक्ति को आमतौर पर
फट्टू कहा जाता है। अच्छा मेरी तरफ देख के हंसी हो रही है? नहीं सर, आपकी तरफ। ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे को देख के बहुत फट्टू आदमी है। ओके। In Mumbai slang, what kind of person is usually referred to as फट्टू? ऑप्शन सुनिए। A, lazy, B, rich, C, happy, D, scared. डी स्कैर्ड, डरपोक, डी डरपोक। बोलते ना तू फट्टू है, फट्टू। श्योर हैं? श्योर सर, हमारी इंडस्ट्री में बहुत हैं। आलसी, अमीर, सुखी या डरपोक? डरपोक, डी डरपोक। कंफर्म है? सर ओके, कंफर्म कर दिया। डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया। 1000 रमजानुल मुबारक के कुल कितने और कौन कौन से नाम हैं? हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक के कुल 4 नाम हैं। माह रमज़ान, माह सबर, माह मवासात, माह वुसअत रिज़्क़। सुभान अल्लाह, रमज़ान के 4 नाम हैं। ये नाम भी कितने प्यारे हैं। माह सब्र, माह मुआसात, माह वुसअत रिज़्क़ और माह रमज़ान। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इनमें से कौन सा नॉवेल शौकत सिद्दीकी ने तहरीर नहीं किया? इनमें से कौन सा नॉवेल शौकत सिद्दीकी ने तहरीर नहीं किया? अलिफ खुदा की बस्ती, बे जांगलूस, जीम 4 दीवारी या दाल उदास नस्लें। खुदा की बस्ती के बारे में तो ये सुन लें कि ये इसके फिल्म के राइट्स मैंने शौकत सिद्दीकी मरहूम से खरीदे थे। मैं राइट्स मेरे पास अभी भी कागज अब उधर कहीं पड़ा हो तो पड़ा होगा। ये बरसा बरस की बात है। शौकत सिद्दीकी का ये नॉवेल है खुदा की बस्ती। रूस भी मेरा पड़ा हुआ है, ये भी शौकत सिद्दीकी का है। 4 दीवारी मैंने नहीं पढ़ी और उदास नस्लें पड़ी हुई है। ये अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। उनका पिछले 3-4 महीने हुए इंतकाल हुआ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब्दुल्ला हुसैन। उदास नस्लें सेफ। मेरा दोस्त बताएगा कि उन 2 जानवरों के नाम जिन्हें बगैर हलाल किए खाया जा सकता है। एक तो मछली है, एक तो मछली हुई, केकड़ा भी है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। आपने जो पहला सफेद, भूरा और काला किस खाद्य पदार्थ की किस्में हैं? व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक आर वैरायटीज ऑफ व्हिच फूड आइटम? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, व्हीट, बी राइस, सी कॉर्नफ्लावर और इज इट डी बार्ली? गेहूं, चावल, मक्के का आटा या जौ? सर ये फूडी है बहुत बड़ी, तो अच्छा। ये बताएंगी। बी चावल, चावल। बी राइस सर। कंफर्म है? कंफर्म्ड है। दीपिका जी जी सहमत हैं आप सर? दोनों? मैं सिर्फ व्हाइट वाला खाती हूँ इसलिए मुझे पता है। अच्छा, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर दिया। 2000 दिए हैं। सर खाने के सवाल है कि पहले एशियाई बाशिंदे का नाम जिसने 1913 में अदब का नोबेल इनाम हासिल किया। जोगिंदरनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। जवाब दुरुस्त है साहब। जापान के सबसे ऊंचे आतिशफशां का नाम? फ्यूजीयामा। शाबाश। फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा। और सवाल है कि किस मुल्क को हाथियों की सरजमीन कहा जाता है? हाथी की थाईलैंड। थाईलैंड या श्रीलंका को भी। जवाब दुरुस्त है साहब। सिंधी अदब का डेप्यूटी नजीर अहमद किस शख्सियत को कहा जाता है? मिर्जा कलीज बेग। शम्सुल उलमा मिर्जा कलीज बेग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले का नाम बताएं। पहला कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर शहीद। सिंध में मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा कब दरियाफ्त हुए और किसने दरियाफ्त किए? सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किए 1922 में। 1922 सर जॉन मार्शल की हुई। एक गलती हुई। आपका नाम क्या है? सैयद नसीमुद्दीन। आप पहले भी क्विज शोज में आते रहे हैं? जी हाँ। कभी जीता कुछ आपने? मतलब टीवी के मुकाबले में कभी नहीं जीता। इसके अलावा स्टेज पे बेशुमार इनाम जीते हैं। अच्छा, आज तो आपने हमारा हशर कर दिया। अच्छा, मेरे दो सवाल यह है कि पठानों की रूमानी कहानियां, सियासी कारनामों और मजहबी सरगर्मियों का मरकज है हुजरा। बताइए हुजरा किस जबान का लफ्ज है? हुजरा अरबी का लफ्ज। अरबी।
یہ بتائیں کہ محمود غزنوی نے زیادہ علاقہ فتح کیا یا سکندر اعظم نے؟ सिकंदर आजम ने सिकंदर आजम ने। तो आगा हशर काश्मीरी का असल नाम? मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह। 3 जवाब। ये रेशम का कीड़ा, एक कीड़ा अपनी तमाम उम्र में कितने गज रेशम पैदा करता है? शाबाश। वक्त हुआ, वक्त हो गया। रेशम का एक कीड़ा अपनी सारी उम्र में 1000 गज रेशम पैदा करता है। मेरे दोस्त से गलती हो गई। पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है? भंबोर की मस्जिद। भंबोर की मस्जिद। जवाब दुरुस्त है साहब। सवाल ये है कि नींद के दौरान आदमी की नब्ज किस रफ्तार से चलती है? लगभग नब्ज। जी, इंसानी नब्ज। शाबाश। 70। नींद के वक्त 35। नहीं भाई, बहुत फर्क है। 35 वाला तो बहुत ही बीमार होगा। नींद के दौरान इंसान की नब्ज 55, जो मेडिकल साइंस कहती है 55 बीट्स फी मिनट के हिसाब से। गलती हो गई। फोर्ट संडेमन का मौजूदा नाम क्या है? शोप। ये बताएं, अवामी जमहूरिया चीन के ताउन से मुल्क का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है, उसका नाम जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये पाकिस्तान के किस शहर में है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। अंग्रेजी जबान में गैर शादीशुदा खवातीन के लिए मिस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसका उर्दू में मुतरादिफ क्या है? इसको हम आंसा या मुसम्मात वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस की दुल्हन किस शहर को कहा जाता है? पेरिस। दुनिया का सबसे पहला सिनेमा घर यूरोप के किस शहर में तामीर किया गया? पेरिस। पेरिस। कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है? ये हिंदू कुश में है। ये ग्लेशियर ये मशरकी सिलसिला कोह कराकुरम में एक गलती हो गई। मस्जिद नबवी की कीमत किन सहाबी ने अदा फरमाई थी? हजरत अब्बास और हजरत उस्मान गनी का नाम भी आता है। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत हजरत अबू अय्यूब अंसारी इन्होंने अदा फरमाई थी। गलती हुई जी। दुनिया के 7 बर्रे आजमों में कुल कितने बर्रे आजम ऐसे हैं जहां अब तक एक भी ओलंपिक खेल मुनाकिद नहीं हुआ? दुनिया के 7 बर्रे आजम में? हाँ। 1, 2, 3, 4। शाबाश। 4 हैं ऐसे। मसलन कहां कहां? अफ्रीका में नहीं हुआ है। अफ्रीका में नहीं हुआ? नहीं, 5 सॉरी 3 हैं ऐसे। ऑस्ट्रेलिया और एशिया और अमेरिका और यहाँ यूरोप में हो चुके हैं। 3 ऐसे जहाँ नहीं हुए। 3 ऐसे हैं जहां नहीं हुए। जरा नाम बताएंगे कि वो कौन कौन से? जनाब, अफ्रीका है, अटलांटिका है, अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका। जनूबी अमेरिका। जवाब दुरुस्त है साहब। उस पुराने जमाने में एक आम बैल की मदद से एक दिन में जितने रकबे पर हल चलाया जाता था, वो रकबा एक इकाई बन गया। क्या आपके इल्म में है कि अब उस रकबे को, उस इकाई को क्या कहा जाता है? जिस तरह गिनती की एक इकाई दर्जन है, जिस तरह मेरा ख्याल है मैं समझा पा रहा हूं। 1 एकड़। अच्छा मेरे दोस्त, मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें पाकिस्तान के किस शहर का तस्करा है? लाहौर। सतह जमीन से 12 मील की बुलंदी तक आसमान नीला नजर आता है, इसके बाद इसका रंग जामनी हो जाता है। बताइए जमीन से तकरीबन 20 मील ऊपर आसमान का रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक, स्याह। शरफ्ता इनमें से किस शायर का मजमुए कलाम है? अलिफ फैज अहमद फैज, बे मजीद अमजद, जीम अहमद नदीम कासमी, यदाल अमजद इस्लाम अमजद। सुलगते जाते हैं, चुपचाप हंसते जाते हैं, मिसाल चेहरा पैगंबरां गुलाब के फूल। कटी है उस बहारों के सोग में अमजद,
मेरी लहद पे खिले जावेदां गुलाब के फूल। वाह 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 वाह। मजीद अमजद बेको से इसलिए कि मजीद अमजद साहब ने दुनिया नज़्म को एक नया आहंग बख्शा और 29 जून 1914 को आप झंग में पैदा हुए थे और शब रफ़त को कि उनका पहला शेरी मजमुआ था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ने बाकायदा इनकी कुलियात मजीद अमजद के नाम से इसको तरतीब दिया है। तो इट शुड बी राइट आंसर मजीद अमजद। लफ्ज टैली से शुरू होने वाली दो इजादात के नाम बता दीजिए। टेलीविजन एंड टेलीफोन। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? जी कान की हड्डी? जी नहीं, ये हंसली की हड्डी या कॉलर बोन जिसे कहते हैं, ये इंसानी जिस्म की कमजोर तरीन हड्डी है। एक गलती हो गई जी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून का नाम बता दें। जेनको टेबाई, इन्होंने 1974 17 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। गलती हो गई। दुनिया चौकोर है, बताइए ये बात सबसे पहले सुकरात ने कही या बुकरात ने? या दुनिया गोल है, किसी ने कहा चौकोर। दुनिया गोल है, दोनों मुफक्किरों में से किसी ने ये बयान नहीं दिया, ये मेरी मनगढ़ंत बात थी। जवाब दुरुस्त है साहब। की दुनिया की सबसे पहली खातून पायलट का नाम? आपने लिफाफा ही मुश्किल उठा दिया। क्या करें, किस्मत की बात है। तुर्की की सबिहा खानम। 4 गलतियां हो गई। मेरा ख्याल है कि मुकाबला तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने 10 में से 2 गलतियां की हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के विनर भी हाफिज नसीम साहब रहे। इन्होंने 10 में से 8 के जवाब दिए हैं। ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, ये शहर किस मुल्क में है? ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च। अमेरिका? जी नहीं, न्यूजीलैंड। गलती हो गई जी। 50 लाख रुपए का सवाल अलमास ज्वेलर्स की तरफ से तारिक अजीज साहब के लिए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से गवर्नर जनरल का हल्फ लेने वाले जज का नाम क्या था? ये जज हाई कोर्ट के थे या सुप्रीम कोर्ट के? खैर उन दिनों सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते थे, फेडरल कोर्ट कहते थे उसे। बस सीनियर मुसलमान जज थे और सीनियर मुसलमान जज। जी हाँ। और एक बात आपको और बता दूं, बहुत ज्यादा उसूल पसंद थे, बड़े मुंतजिम थे, बहुत उसूल पसंदी और ईमानदारी की शोहरत रखते थे। इनको अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनको सर का खिताब मिला हुआ है। जी सर का खिताब मिला। मैं पहुंच गया। सर अब्दुल रशीद। सवाल स्टार मार्केटिंग की तरफ से 2 करोड़ रुपए के घर के लिए। इजाजत हो तो सवाल की तरफ बढ़े। मैं तो ये रखूं, मैंने तो कभी 2 करोड़ कहीं पड़े हुए नहीं देखे। आप मुझे उसमें खींच रहे हैं। मेरा ख्याल है 50 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। इस बार आप शायद कोई मुश्किल चीजें लेके आए हैं इस दफा, जो 2 करोड़ जी मुश्किल। जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ ना आपने क्या क्या जीता है। पहले हम आपको बताते ताकि आपको पता चले। अभी तक आपने जीते हैं तलो की तरफ से एक सेल फोन, तलो की तरफ से 25,000 रुपए कैश, तलो की तरफ से 70 सीसी की बाइक, तलो की तरफ से लैपटॉप, तलो की तरफ से 70 सीसी की बाइक, 1 लाख रुपए कैश, 3.5 लाख रुपए के पैल के होम अप्लायंसेस, FAW की 800 सीसी की गाड़ी, 8 लाख रुपए के पुलानी ट्रेवल्स की तरफ से हज पैकेज, FAW की 1000 सीसी की गाड़ी और 50 लाख रुपए का सोना बगैर हेल्पलाइन इस्तेमाल किए नॉक नॉक के आप जीत चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है मेरे लिए। बैठे 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 मैं जाता हूं। ये सब आपका है, आपका है। अच्छा, तो जा रहे हैं आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल के लिए स्टार मार्केटिंग की तरफ से 2 करोड़ रुपए का घर। सवाल आ रहा है इनकी स्क्रीन पर।
سید فضل الحسن اردو کے کس مشہور شاعر کا اصل نام ہے؟ سید فضل الحسن. اور اگر آپ اس کا صحیح جواب نہیں دے سکے طارق عزیز صاحب تو اب تک آپ نے جو کچھ بھی جیتا ہے وہ صرف آپ کو دوسری منزل تک ہی مل سکے گا. تیسری منزل کی کوئی چیز بھی ہم آپ کو نہیں دے سکیں گے. ہائے ہائے ہائے، بات یاد آ گئی، آگے پتہ نہیں میری قسمت ہے. پوچھتے ہیں وہ جان نثاروں کو، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو. حسرت موہانی ہے یہ. ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت میں. مولانا حسرت پاکستان زندہ باد. مینار پاکستان کی بلندی کتنی ہے؟ 196 فٹ 6 انچ. 196 فٹ 6 انچ. پاکستان کے سب سے بڑے گلیشیئر کا کیا نام ہے؟ سیاچن. 14 جولائی 1789 کو بیسٹائل کے جیل خانے سے دنیا کے کس مشہور انقلاب کا آغاز ہوا تھا؟ 1789. انقلاب فرانس. انقلاب فرانس. شاباش. کہ جب ہم قصیدہ بردہ کہتے ہیں تو کن بزرگ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ ابو سر یا سیر کوئی. ابو سیر. محمد بن سعید بوسیری. جواب غلط مانتا ہوں. دنیا فلم کا سب سے بڑا مرکز ہالی ووڈ کس امریکی ریاست میں ہے؟ کیلیفورنیا. کیلیفورنیا. خلا میں سب سے پہلے کون سا گانا گایا گیا؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ. اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کا نام؟ قلی قطب شاہ. دکن کے بادشاہ قلی قطب شاہ. یہ بتائیں کہ حضور نے کل کتنے غزوات میں شرکت کی؟ وقت محدود ہے جی. 1 2 3. چھوٹے بڑے کل 27 غزوات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی. انبیاء اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول کی اپنی شریعت ہوتی ہے اور انبیاء وہی پچھلے نبی کا پچھلے رسول کا پیغام لے کے آئے ہوتے ہیں. اور رسول صحیفہ لے کے آتا ہے. رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے اور انبیاء پر کتاب نازل نہیں ہوتی. جواب درست ہے جی. وہ کون سا شعر ہے جو علامہ اقبال کی مشہور کتاب بال جبریل کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے؟ 1 2. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. ہے کہ کتاب الہند کس کی شہرہ آفاق کتاب ہے؟ البیرونی. البیرونی. میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی.